Hello, all of you. Welcome back to my YouTube channel. This is Akansha, and I teach content writing. While you are applying for content writing job or internship, or you are taking up a freelance project, there is a mistake that you can do while submitting your portfolio or giving your sample work that can ruin your chances of getting that job. Do you want to know what is that mistake? Then stay tuned till the end of this video to know that mistake and make sure that you are not making it. Whenever you write your sample work, while writing it, make sure that you are not making this one mistake, which is off writing the content with low readability score. If you're writing a content with low readability score, your chances of being selected for the job or internship get reduced. Now, what is readability score? Readability score is how easy or difficult your article is to read. Readability score does not depend on your vocabulary, it will depend upon the structure of your sentence. Now, I'll tell you factors that will help you to decide or improve your readability score. First is length of your sentence. The number of words in your sentence is the main factor that decides your readability score. It is how lengthy or short your sentences should be. Ideally, there should be 8 to 9 words in your sentences, or it can go till 10 to 11, but not more than that. If the number of words in your sentences are more than that, then the sentence will be very lengthy and difficult to read. So, people will be able to read it, but in one go, they will not be able to understand its meaning. This means, I am repeating once in Hindi, that कि अगर आपका sentences बहुत लंबा होगा, तब लोगों को आपके sentences का meaning समझने में difficulty आएगी. That's why आपको अपने sentences में short sentences use करने हैं, ना कि लंबे लंबे. तो मतलब आपके एक sentence में ज़्यादा words नहीं होने चाहिए. Next one is use of active voice. While writing the article, make sure that you are writing in active voice and not in passive voice. आपका article active voice में लिखा होना चाहिए. Most of the time आपको active voice use करना है, but कहीं अगर बहुत ज़रूरी है passive use करना तो आप कर सकते हो. जैसे I have done my work is an active voice. My work was done by me is a passive voice. I have cleaned my room is an active voice. My room was cleaned by me is a passive voice. So, ये एक्टिव और पैसिव वॉइसेस के एग्जाम्पल हैं. प्रैक्टिस मोर पैसिव टू एक्टिव वॉइस की आपसे ये एरर ना हो और आप इम्प्रूव कर पाओ इसमें. इससे जो भी आप कंटेंट लिखते हो वो बहुत डायरेक्ट रहता है और इजी टू अंडरस्टैंड रहता है. एंड दीज आर टू थिंग्स दैट हायरर विल चेक व्हाइल हायरिंग यू फॉर द जॉब रोल. सिर्फ ये दो चीज़ें करके ही आप अपना चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द जॉब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो. Now I'll teach you one website that you can use for increasing your readability score. Website name is Hemingway App Editor. This is the website that we will be using to edit our articles. In this you can increase your readability score. आप अपना readability score यहाँ देख सकते हो. 14 grade means कि आपका आर्टिकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ये ग्रेड जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. लाइक आइडियली इट शुड बी बिटवीन 5 और 6. आपको अपना रीडेबिलिटी स्कोर टारगेट रखना है कि आप 5, 6, 7 इसके अराउंड रखो. अगर आपका रीडेबिलिटी स्कोर का ग्रेड इतना है मतलब आपका आर्टिकल अच्छा है. तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेकार आर्टिकल होगा. तो ये कंटेंट है जो कि मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है. उसका रीडेबिलिटी स्कोर है 14. नाउ वी विल ट्राई टू फिक्स द रीडेबिलिटी स्कोर इन दिस. नो नीड टू बाय द प्रीमियम वर्जन ऑफ दिस. ये ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके आर्टिकल्स को एडिट करने में. फर्स्टली आप समझेंगे कि इसमें डिफरेंट हाइलाइट्स का मतलब क्या है. येलो हाईलाइट हेयर मीन्स दैट योर सेंटेंस इज लेंदी, and red highlight also means your sentences are lengthy. But red highlight means that it's very difficult to read as compared to the yellow one. So you have to remove highlights from both the yellow and from the red one. आपको दोनों येलो और रेड वाले में से हाईलाइट को रिमूव करना है. और आप हाईलाइट कैसे रिमूव करोगे? यू विल शॉर्टन द सेंटेंसेस. Either you can divide the sentences into 2 or 3, or you can write a completely new sentence. Let us try. I'll do it and show it to you. Content writing is often seen as easy task, but it is actually a skill that is carefully learned and slowly improved with time. So what we can do is we can divide it into 2 sentences. Content writing is often seen as an easy task.
It is actually a skill that is carefully learned and slowly improved with time. You can see grade 13. Okay, तो ये improve हुआ, right? Now ये ब्लू हाइलाइट मीन्स कि ये एडवर्ब्स है या फिर ये पैसिव वॉइस है। इसमें भी एल वाई और केयरफुली, मोस्टली, थॉटफुली, ईजली, ये हमारे सेंटेंसेस को वीकर करते हैं। व्हाट यू कैन ट्राई इज टू रिमूव दिस। अगर आप सिंपली इसे रिमूव कर दोगे फिर भी आपका आर्टिकल बेटर हो जाएगा, विच इज बट इट इज एक्चुअली अ स्किल दैट इज केयरफुली लर्न। केयरफुली का कोई ज़रूरत नहीं है, इवन विदाउट यूजिंग द वर्ड केयरफुली योर सेंटेंसेस विल बी गुड। दैट इज़ लर्न्ड एंड स्लोली इम्प्रूव। तो ये अननेसेसरीली ऐड हुआ है, अगर आप इसे रिमूव भी कर दोगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ना यहाँ भी आपको ब्लू दिख रहा है इज़ लर्न्ड में। जब मैंने ये वाला मोस्टली हटा दिया या क्लियरली हटा दिया तो एडवर्ब तो रिमूव हो गया। बट एक और ब्लू में आता है, वो होता है पैसिव वॉइस। यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप इसे फिक्स विद एआई करोगे इट विल आस्क यू टू पे द मनी एंड बाय द प्रीमियम वर्जन, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से कर सकते हो। अब ये जो पैसिव वॉइस है उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। बट इट इज़ एक्चुअली अ स्किल दैट इज़ लर्न्ड एंड इम्प्रूव्ड विद टाइम। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी कैन राइट इट एज, but it is actually a skill that we learn, that we can learn and improve with time. ठीक है, अब ये 12 हो गया। तो ऐसे ही आप जब अपने सारे सेंटेंसेस को शॉर्टर कर दोगे और फिर उसके बाद इसमें से पैसिव वॉइस को रिमूव कर दोगे तो आपका रीडेबिलिटी स्कोर बेटर हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको टारगेट रखना है कि आप ये 5 या 6 पे ला पाओ। नाउ सेम गोज़ फॉर द रेड सेंटेंस। रेड सेंटेंस इससे थोड़ा और लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको आपको 3 या 4 सेंटेंसेस में करना पड़ेगा कि ये पूरा रेड, येलो पूरा हाइलाइट्स हट जाए। लेट अस ट्राई। इन कंटेंट राइटिंग वर्ड्स आर थॉटफुली चोज़न। पहले तो ये हटा दो, चोज़न हटा दो। सेंटेंसेस आर क्लियरली रिटन। फर्स्ट वी विल रिमूव ऑल द ब्लू हाइलाइट। This is how I have shortened the length of this sentence and removed red and yellow highlight from this. Okay, this is what you need to do. Now इसमें एक और highlight होता है which is the purple highlight. I'll write an example for that. I require your help. Purple highlights is optional. It is as per your need. If you want, you can remove it or you can keep it as it is. जब आप पर्पल हाईलाइट पे क्लिक करोगे तो आप एक ऑल्टरनेटिव वर्ड देख पाओगे क्योंकि इस सेंटेंस के साथ बेटर जाएगा। लाइक ऑफ कोर्स आई रिक्वायर योर हेल्प की जगह आई नीड योर हेल्प बेटर जाएगा। तो ऐसे ही ऑल्टरनेटिव वर्ड्स के सजेशंस आपको हेमिंगवे देगा। इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट यू कैन एडिट इट, इफ यू डोंट वांट यू कैन लीव इट एज इट इज, लाइक दिस, आई नीड योर हेल्प। ओके, दिस इज हाउ यू कैन एडिट योर आर्टिकल एंड इंक्रीज द ग्रेड। अभी मैंने सिर्फ 1-2 लाइन इम्प्रूव की है एंड उसके बाद मेरा ग्रेड है 10। तो जस्ट थिंक कि अगर आई विल एडिट दिस एंटायर आर्टिकल तो आराम से मेरा ग्रेड 5-6 आ जाएगा, विच इज़ गुड। तो ये दिस रीडेबिलिटी स्कोर इज समथिंग जो कि हर कंपनी, एवरी हायरर विल चेक बिफोर गिविंग यू द जॉब। यू नीड टू वर्क ऑन दिस और एल्स अगर आपका रीडेबिलिटी स्कोर 14-15 रहा तो यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड। हमेशा कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपना रीडेबिलिटी स्कोर चेक कर लेना आप। और नाउ टास्क फॉर यू, अगर आप करना चाहो तो यू कैन राइट अ पैराग्राफ, एडिट इट एंड सेंड इट टू मी, मेल इट टू मी। आई विल ऐड माय मेल इन द डिस्क्रिप्शन। और आप अपना पैराग्राफ मुझे भेजो कोई भी लिख करके, उसका रीडेबिलिटी स्कोर पहले और बाद में एडिट करके, एक पहले एडिट करने से पहले और एक एडिट करने के बाद का रीडेबिलिटी स्कोर आप मुझे भेजो। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी रीडेबिलिटी स्कोर को एडिट करने में, इम्प्रूव करने में, then you can mail me and I'll solve your doubts. That's all for the video. Thank you so much for watching. If you like the video, then please like, share and subscribe the channel.